So now let us talk about the blood supply of breast. Blood supply, first we have to discuss its arterial supply. So since it lies in the pectoral region, this is the breast, this is the sternum. In this region, next to the sternum, we have our internal thoracic artery, and just superior to the pectoral region, we have our axillary artery going into the axilla and then into the upper limb, continuing as the brachial artery. So hence, the artery surrounding the structure supply that structure. So some branches from the internal thoracic will supply breast, and some branches from axillary artery will supply. And here lies the ribs, and ribs are supplied by intercostal artery. So some part will be supplied by intercostal artery also. So this is a broad picture. This is a broad picture. And this is exact picture. Blood supply from branches of internal thoracic artery. From axillary artery. Axillary artery has branches named as superior thoracic, acromiothoracic, and branches from posterior intercostal artery. That is all about the blood supply. The venous drainage, some blood is drained into the internal thoracic vein, some is in the axillary vein, and some gets drained into the azygos vein. And this is drained in the basivertebral vein. This goes to Bateson paravertebral system, which finally reaches the cranial venous sinus. That is very important point. When we discuss head and neck and neuroanatomy, we will discuss it in detail. But for now, just remember that if any infection, if any carcinoma is being drained into the azygos system of veins, then it may reach up to the brain through basivertebral system or Bateson paravertebral system. Okay. Next important funda is that the superficial vein and deep vein. The superficial vein drains into the internal thoracic vein, and the deep vein of the breast drains into axillary and posterior intercostal vein. That is, you have to remember. Nerve supply. Anterior and lateral cutaneous branch of 4th to 6th intercostal nerve. See, simply pectoral region में है और यहीं पर ribs होते हैं, तो any intercostal artery, intercostal vein, intercostal nerve से ही इसका blood supply या nerve supply होगा. तो anterior और lateral cutaneous branch of 4th to 6th intercostal nerve. भाई ये कौन कौन से intercostal space में लाई करा था? 2nd to 6th. ठीक है, तो 4th से 6th intercostal nerve इसको supply देंगी nerves. This is very important. Next point. The nerves do not control the milk secretion. Then what thing controls the milk secretion? The answer is hormonal control. That's why I said that is important for us emotionally also. Okay. The lymphatic drainage. Oh, a lot of bunch of paragraphs comprised in a single slide. Okay. The lymphatic drainage will comprise of lymphatics and lymph nodes. There are 3 lymphatics for draining breast. Periglandular, that is around the gland, around the mammary gland, that is a part of parenchyma. The subareolar, that is beneath the areola of the skin of the mammary gland. Go back to structure. Periglandular. Go to the periglandular. See, periglandular will drain the mammary gland. Subareolar will drain the areola, and lymphatic lake of style will drain other parts. Okay. Lymphatic lake of style.
ठीक है। सो पेरिग्लैंडुलर ओपन्स इन द सब एरियोलर प्लेक्सस ऑफ सेप्टे, दिस you just have to remember. And now lymph nodes are, देखो भाई सिंपल सा फंडा है, ये हमारी बॉडी है, ठीक है, यहाँ पर ब्रेस्ट है, ये हमारा एक्सिला है, ये हमारा एक्सिलरी रीजन है, ये हमारा थोरेसिक रीजन है, यहाँ हमारा क्लेविकल आता है, ठीक है, यहाँ हमारा डायफ्राम आता है, ठीक है। तो एक्सिला में जो नोड्स होंगे एक्सिलरी लिम्फ नोड्स, क्लेविकल के ऊपर होंगे वो सुप्रा क्लेविकुलर लिम्फ नोड्स, थोरैक्स में होंगी तो एंटीरियर थोरेसिक लिम्फ नोड्स, ठीक है। अब यहाँ पर ये अपना आ रहा है रिब्स होते हैं, इंटरकोस्टल स्पेस होता है, तो वहां पर भी लिम्फ नोड्स होती हैं, तो वो होती हैं पोस्टीरियर इंटरकोस्टल लिम्फ नोड्स। ये डायफ्राम है तो इसके नीचे भी कुछ होती है, तो सब डायफ्रामेटिक लिम्फ नोड्स। यहीं पर पेरिटोनियम होता है, सब पेरिटोनियल लिम्फ नोड्स, इतना इजी। अब एक्सिलरी की भी डिविजन्स हैं। एक्सिलरी में एक्सिला अगर आप मेरा लेक्चर जाके देखेंगे तो मैंने बताया है, एक्सिला में एक एपेक्स होता है, एक बेस होता है, मीडियल वॉल होती है, लेटरल वॉल होती है, एंटीरियर होती है, पोस्टीरियर होती है, ठीक है। तो एपेक्स पे जो लिम्फ नोड्स होंगी वो होगी अपाइकल, एंटीरियरली होगी वो एंटीरियर लिम्फ नोड्स, जो पीछे की तरफ होंगे वो पोस्टीरियर लिम्फ नोड्स, ठीक है। जो लेटरली होंगी वो लेटरल लिम्फ नोड्स होंगे, और एक सेंटर में होगी वो सेंट्रल लिम्फ नोड्स होंगी, ठीक है। मीडियल क्यों नहीं बताई मैंने, क्योंकि मीडियल करती है एंटीरियर थोरेसिक, ठीक है। अब देखिए इसका डायरेक्शन ऑफ लिम्फ फ्लो इंपॉर्टेंट है, यानी एंटीरियर और पोस्टीरियर से जाती है सेंट्रल में, सेंट्रल से जाती है लेटरल में, लेटरल से अपाइकल में, फिर सुप्राक्लेविकुलर, ठीक है। एंटीरियर पोस्टीरियर के बाद सेंट्रल, फिर लेटरल, फिर अपाइकल, ऐसे जाता है। देखो अगर हमें इसको एक्सप्लेन करना हो ना तो देखो ये एंटीरियर है, ये पोस्टीरियर है, ठीक है, ये सेंट्रल है, ये अपाइकल है, ठीक है। एंटीरियर पोस्टीरियर सेंट्रल लेटरल और अपाइकल, ठीक है। तो देखो एंटीरियर पोस्टीरियर से जाएंगी सेंट्रल में, यही तो है, सेंट्रल से जाएंगी लेटरल में, लेटरल से जाएंगे अपाइकल में, ठीक है। देखो ऐसे समझो, ये लेटरल, ये मीडियल, ये पोस्टीरियर, ये एंटीरियर, ये सेंट्रल, ठीक है। तो एंटीरियर और पोस्टीरियर कहाँ ड्रेन करेंगे, सेंट्रल में, सेंट्रल जाएंगे लेटरल में, और लेटरल जाएंगे अपाइकल में, और अपाइकल कहाँ जाएगा, सुप्राक्लेविकुलर में, क्योंकि एपेक्स है, ये एपेक्स है, एपेक्स के बाद है हमारा क्लेविकल, तो ये सुप्राक्लेविकुलर में जाएगा, ठीक है। ये डायरेक्शन ऑफ लिम्फ फ्लो हो गई, ये लिम्फेटिक ड्रेनेज हो गया। अब ये एक और देख लीजिए, ये तो हमारी दोनों ब्रेस्ट है, ठीक है। एक ब्रेस्ट का इन्फेक्शन दूसरे में कैसे जा सकता है, एक ब्रेस्ट का कार्सिनोमा दूसरे में स्प्रेड होने के लिए कौन सी लिम्फ नोड इंपॉर्टेंट है, इंटरनल मेमोरी लिम्फ नोड, ठीक है। इनके थ्रू इन्फेक्शन स्प्रेड होता है, और यहाँ पर आप अपाइकल, सुप्राक्लेविकुलर, सब पेरिटोनियल, सब डायफ्रामेटिक, यहाँ डायफ्राम आ जाएगा, ये क्लेविकल आ ही गया, इस तरह से क्लियर है डायग्राम। ये हमने हमारी एंटीरियर थोरेसिक नोड्स दिखाई है, पोस्टीरियर इंटरकोस्टल स्पेस नोड्स दिखाई है, ये एंटीरियर साइड है, ये पोस्टीरियर साइड है, ठीक है। ये हमारा निप्पल है, ठीक है। चलिए एप्लाइड देख लीजिए, ब्रेस्ट कैंसर और मेमोग्राम। ब्रेस्ट कैंसर को एसेस करने के लिए मेमोग्राम कराया जाता है। दिस इज अ क्वेश्चन कि फर्स्ट क्राइटेरिया ऑफ डायग्नोस ऑफ अ ब्रेस्ट कैंसर इज अ पॉजिटिव मेमोग्राम। उसके बाद FNAC कराई जाती है, फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोग्राफी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अप्लाइड इज अपर लेटरल क्वाड्रेंट मोस्ट फ्रीक्वेंट साइट ऑफ
ब्रेस्ट कैंसर। ये जो हमारी ब्रेस्ट है इसको 4 क्वाड्रेंट में, अपर मीडियल, लोअर मीडियल, अपर लेटरल, लोअर लेटरल। तो ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो अपर लेटरल क्वाड्रेंट, इट इज द मोस्ट फ्रीक्वेंट साइट ऑफ ब्रेस्ट कार्सिनोमा। ब्रेस्ट कार्सिनोमा में जो सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ कूपर होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं, उसकी वजह से रिट्रैक्शन ऑफ स्किन होता है, और क्या होता है, पेंडुलस ब्रेस्ट होती है। PUDO ऑरेंज, इस टर्म को आप एक्सप्लेन करेंगे। PUDO वेरी फेमस टर्म, गो एंड सर्च अबाउट दिस। बेट्स एंड पैरावर्टिब्रल सिस्टम के बारे में हमने डिस्कस करा ही था। मास्टेक्टोमी इज द रिमूवल ऑफ ब्रेस्ट टिश्यू, ठीक है, ये आप हम अप्लाइड में लिख सकते हैं। उसके बाद डेवलपमेंट देख लीजिए। देखिए सरफेस स्ट्रक्चर है हमारा ब्रेस्ट, तो यानी जो भी सरफेस स्ट्रक्चर है वो एक्टोडर्म से ही ओरिजिन लेते हैं। तो ब्रेस्ट इज एन एक्टोडर्मल टिश्यू, so ectoderm will give rise to mammary ridge which we call as milk line of Schulze in the 4th week of intrauterine life. mammary ridge बनाएंगे memory pit फिल फॉर्म करेंगी सेकेंडरी बर्ड्स, और वो सेकेंडरी बर्ड्स बनेंगे ग्लैंडुलर लोब्स में। उन लोब्स का सॉलिडिफिकेशन होगा पहले, फिर होगा कैनलाइजेशन, और इस तरह से हमारी ब्रेस्ट डेवलप हो जाएगी। कैनलाइजेशन जो प्रोसेस है ये एक और ऑर्गन के डेवलपमेंट में होगा। क्या आप गेस कर सकते हैं कौन सा ऐसा ऑर्गन जब डेवलप होगा तो पहले वो सॉलिडिफिकेशन होगा, फिर उसके अंदर कैनल का फॉर्मेशन होगा? बताइए कमेंट में, नहीं तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर ब्रेस्ट। इफ यू फाउंड इट यूजफुल then please share it to your friends. Thank you very much. Have a good day.